Hello students, I am Jivan Jyoti Mudali, your JJ sir. So today we are going to start a new topics and it is very interesting, really very interesting because in this chapter we are going to study about the modern physics. In this chapter we will discuss about the solar cell, we'll discuss about the light emitting diodes, we'll discuss about the photodiode, like this many more modern things. So let us start. So from today onwards, this is my lecture 1, and from today onwards we will start study about the semiconductors and semiconductor materials and their applications. So let us start. So look at the slides. The first thing I am written here, the magic of electronics. So I think all of you know about the magic of electronics. ଆଗରୁ କେମିତିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଲାଣି। ତମେ ଯଦି ତମ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କୁ ଯିବ ଦେଖିବ ତମ ଘରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଟିଭି ଥିଲା, ତାର ଓଜନ କେତେ ଅଧିକା ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତାର ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ଆଉ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ ଟିଭିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି କନସିଡର କରିବା 70% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିନ୍ ଟିଭିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ପତଳା ଟିଭି। ସେଇ ଟିଭିର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏଲଇଡି ଟିଭି ବୋଲି କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଲଇଡି ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଇମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ରିଏଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ କି ଛୁଆ? ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଥିନର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଲାଇଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, କମ ଓଜନ ଆଉ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି। ତମାନେ ଆଗକାଳିଆ ଟିଭିକୁ ଦେଖିବ, ଏବେ ଟିଭି ଏଲଇଡି କୁ ତମେ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲେଇକି ଦେଖିପାରୁଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାର ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି, ତାର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ନିହାତି ଭଲ ପୁରୁଣା ଟିଭି ଅପେକ୍ଷା। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ସିମିଲାରଲି ସେକେଣ୍ଡ ଇମେଜ କୁ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ମାଇ ଲେଜର ପଏଣ୍ଟର ହିୟର। ଆମେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଚିତ୍ର। ଇଟ୍ସ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ରୁମ୍, ବିଗ୍ ରୁମ୍। ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ସେ ତାର ସାଇଜ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଜ କେତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ପତଳା ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ରେ? ତେଣୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜିଆର ହବାର ଲାଗିଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ଆଗ କାଳରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଏବେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଲାଣି, ଯୋଉଟାକି ତମେ i7 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କହୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, our day to day life very easier, day by day it's going easier। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ହେଲାଣି। ତ ଦେଖ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫିଜିକ୍ସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଆମେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫିଜିକ୍ସ ପଢିବା ମାନେ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ଚାର୍ଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟମରୁ ହିଁ ଜେନେରେଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଏଠି। এটা ତମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଛ, ବୋର୍ସ ଏଟମିକ୍ ମଡେଲ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ ଯେ every atom consists of a tiny central core is known as nucleus। around the nucleus the negatively charged electrons are revolving around a circular
fixed stationary path is known as orbit. तेणु every atom रो ठीक सेंटर रे गोटे tiny central core अछि जोटी की होल द पॉजिटिव चार्ज माने एटम रो थिबा जेति की पॉजिटिव चार्ज सेहिटी कंसंट्रेट हेचंती आउ पाखा पाखी सबु गुडा मास गुडिक मध्य सेहिटी कंसंट्रेट हेचंती तार न्यूक्लियस रो मास ही एटम रो मास ताने इलेक्ट्रॉन रो मास होची कोन नेग्लिजिबल बुझी पालन नाही तेणु न्यूक्लियस रो तुम डेफिनेशन लिखि परिबो एटा मते एटॉमिक फिजिक्स तुम सार पढैतिबे every atom consists of a tiny central core बा गुटे जागा अछि in which whole the positive charge and nearly whole the mass are concentrated that is known as positively charged nucleus. So here look at the laser pointer, the nucleus in the center, and these are the whole are energy level. The first energy level belonging to the first electrons according to the 2n square rule. The first energy level or the first orbit is consist of 2 electrons. After that, the second energy levels is consist of 8 electrons, and after that it is growing by 18 according to 2n square. So the first figure is showing about the how the electrons is moving one orbit to another orbit. This is the Bohr-Thar postulate. So look at here. If the electron will be absorb energy, it will grow. It will be go to the higher energy state or the higher orbit, or it will if the electron will be emitted the energy, it will be jump to the lower orbit. एटा केमिति होउची एटा को ब्रीफली तुमको एक्सप्लेन करूची मे भी तुम बुझितियो न बुझितियो एने ब्रीफली तुमको एक्सप्लेन करूची एक्चुअली एटम रो सेंटर रे न्यूक्लियस अछि तापरे सब एनर्जी लेवल सब क्रिएट हिची बा ताको हम ऑर्बिट बोली कहिताउ तेनु डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी डिफरेंट electrons are moving in different cell तेणु तांकर एनर्जी अनुसार से माने डिफरेंट सेल ले मूव करूचंती जस्ट एन एग्जांपल धरा जो तुम मानक भितरे जहा घरे गुटे कोटी टंका थिवो सी रहिबो 5 तला बिल्डिंग रे जहा जहा पाखरे थिवो कम पैसा थिवो 2 लाख 3 लाख सी रहिबो गुटे तला बिल्डिंग रे it's depend upon your money. Like this, the electrons are staying in different orbits depending upon their energy or depending upon their energy state. So if we will consider the hydrogen atom, the first energy level is having minus 13.6 electron volt, and the electron which are having minus 13.6 electron volt are belonging to first energy level. Is it? तेणु first energy level लो energy होची minus 13.6 electron volt. The formula कौन कहूची minus 13.6 z by n लो whole square. तो for the hydrogen atoms z is equal to 1. तो सीटे हम 1 पकेला परे minus 13.6 divided by n square होची मैं आउथरे तुमको रिमाइंड कर दूची एटा तुम पढ़िथिबो तो minus 13.6 n square अनुसार प्रथम सेल लो एनर्जी होची minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर जदी 2 को आसीबा एठी n होची नंबर ऑफ ऑर्बिट तो जदी हम सेकंड ऑर्बिट कंसीडर करिबा तो केते हिजो minus 13.6 divided by 4 it is like minus 3.4 electron volt तो एटा होची सेकंड ऑर्बिट होची minus 3.4 electron volt like this थर्ड रे होबो minus 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एठी तमे कोन देखुछो जे एनर्जी ता आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी का जाउची तुम निजे छुआ चिंता करो
गोटे एटम भितर जो इलेक्ट्रॉन टी रोची तार एनर्जी नेगेटिव होची एटी किसी सेंस अछि कि किछि भी सेंस नाही बुझी पालो नाही तेणु गोटे इलेक्ट्रॉन टे मूव कले जाई बा गोटे चार्ज मूव कले जाई करंट फ्लो होची तेणु एटम भितरे थिबा इलेक्ट्रॉन माने करंट फ्लो रे पार्टिसिपेट करि परिबे नाही दे मस्ट बी आउटसाइड द एटम आ जो एटम आउटसाइड द एटम बा मटेरियल सरफेस रे थाए सेई एटम सेई इलेक्ट्रॉन मानकू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोली कहा जाए आ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने कोन करथांती करंट फ्लो रे पार्टिसिपेट करथांती तो छुआ माने गुटे कथा एटी देखो तो आस्ते 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 एनर्जी टा कोन होची पड़ी पड़ीका जाउची ता नेगेटिविटी आस्ते आस्ते कमी कमिका जाउची तो मत गोटे कथा को जो इलेक्ट्रॉन टा फर्स्ट सेल रे अछि ताकू खुलिबा सहज ना जो इलेक्ट्रॉन टा थर्ड सेल रे अछि ताकू खुलिबा सहज जो इलेक्ट्रॉन टा थर्ड सेल रे अछि ताकू ही खुलिबा सहज काहे कि ना तार एनर्जी फर्स्ट सेल रे थिबा इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपेक्षा यथेष्ट अधिक तेणु ताकू बाहर करिया पे हेले हमको बहुत कम अमाउंट रे एनर्जी दरकार हिताए ताकू मध्ये तुम कहिची जे जो एनर्जी देखि हमें ताकू बाहर करचु एटम भितरु मटेरियल सरफेस को आणुचु दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन तेणु लेजर पॉइंट को लक्ष्य करो एटी जो इलेक्ट्रॉन अछि ताकू बाहर करिबा होची कष्ट जदि एई इलेक्ट्रॉन जे अछि ताकू बाहर करिया सहज काहे कि ना तांको पाखरे एनर्जी अधिक अछि बुझी पालन नाही तो एठी हम पढिले जे न्यूक्लियस सेंटर रे थाए ताकू बेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल बा ऑर्बिट क्रिएट हेते प्रथम ऑर्बिट बा हाइड्रोजन एटम कथा कंसीडर कले प्रथम ऑर्बिट रो एनर्जी होची -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तेणु आमे जेते ऊपर को जीवा एनर्जी टा बढ़ी बढ़ी का जीवो आउ सभा लास्ट रे जो सेल रहिबो सेउटू ही आमे इलेक्ट्रॉन खोलिबा सबुठू सहज हबो तामान नुहे जे आमे भितरु खोली परिबेनी भितरु खोली परिबा किंतु लास्ट सेल आमे जो इलेक्ट्रॉन अछंती तांको खोलिबा होची बहुत सहज तो सेही मानु कोन कहा जाय छुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोली कहा जाय कारण तुम माने जानिचो जे आउटर मोस्ट सेल को कोन कहा जाय वैलेंस सेल बोली कहा जाय तेनो वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन मानकर घर हिताए बा जो इलेक्ट्रॉन माने बिलोंगिंग्स टू द वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने ही फ्री इलेक्ट्रॉन हेई परिबे तो ताहारी विषय रे हमें आगु को पढिबा तेणु एति कथा जानो जे आमे जेते ऊपर को जीवा एनर्जी बढ़ी बढ़ी का जीवो बा जेते हायर सेल को जीवा आमे एनर्जी बढ़ी बढ़ी का जीवो आउ वैलेंस सेल ही इलेक्ट्रॉन को खुलिबा अति सहज हला लेट अस स्टार्ट विथ सेमीकंडक्टर फिजिक्स तो एटा होची कोन ना इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड देयर एप्लीकेशंस तो as for the thermal conductivity and electrical conductivity we know that the material solids is three types first one is conductor semiconductor and insulator so in this case we are going to consider only the electric properties okay so according to the electrical properties or according to the electrical conductivity the materials are three types one is conductor semiconductor insulator so in this chapter we are going to discuss about the only the semiconductors but at first we will be discuss about all the three things so here some of the application of the semiconductors are given the first one is solar cell so all of you know that the solar cell is a device which is convert the solar energy into the electrical energy we cannot be say the light energy we will say the solar energy okay ता कोन कहा जाय solar cell बोली कहा जाय we will discuss about this many modes okay तो सेकंड को देखो एटा होची कोन
ना गोटे वोल्टेज रेगुलेटर। तो तुम पढ़िबो जेनर डायोड गोटे वोल्टेज रेगुलेटर बा वोल्टेज कंट्रोल करिया पई व्यवहार करा जाई थाए। तो थर्ड रे एटा तुम देखिथिबो एटा होछु एलईडी बा लाइट इमिटिंग डायोड। आ विषय भी तुम एठी पढ़िबो बा जो डायोड लाइट को इमिट करिथाय बा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से लाइट एनर्जी रे कन्वर्ट करे। द फोर्थ वन इज रेक्टिफायर जे कि कोन करथाय एसी करंट आ वोल्टेज को डीसी करंट आ वोल्टेज रे कन्वर्ट करे। तो ता विषय हम पढ़िबा हम ब्रीफली डिस्क्राइब करिबा थेमानकर एप्लीकेशन को आहुरी भलो से पढ़िबा बुझि पालन नाही। तो एठी देखो मु तुम देखैछि डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी types of solids. So this is the conductor and you can look at the animation here lots of free electrons are here. ତେଣୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କହି ସାରିଛି ଯେ ଯାହାର ଯେତେ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତାର ସେତେ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ कैपेसिटी ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟର କନସିଡର କରାଯାଇଥାଏ ଯେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ଦେଇକି ଇଜିଲି କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କାରଣ ତା ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 100% ଆର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ହାଇ ହବ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟିଭିଟି କଣ ହବ କମ ହବ। ତେଣୁ conductor is the types of substance through which electric current can pass easily. That is only due to the number of free electrons is more. And the second one is semiconductor. You can see here only 2 electrons are present. ତେଣୁ semiconductor ର conductivity ଟା conductor ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ ଆଉ resistivity ଟା ବହୁତ ଅଧିକ। Because here very lesser number of free electrons are present. Then if we'll consider about the insulator, there are no free electrons present inside the insulator. So now you can imagine the resistivity of the insulator is like anything or it's very more, and the conductivity is less or we can say is equal to 0. I think all of you understand. The conductor रे free electron संख्या बहुत अधिक तांकर resistivity सबुठु कम तार conductivity सबुठु high. That is due to the lack of that is due to the presence of the free electrons. Second कथा होची semiconductor resistivity टा होची बहुत अधिक आ conductivity टा बहुत कम. That is due to the lesser number of free electrons. And insulator रे totally free electron नाहांती तेणु तार conducting capacity होची we can say is equal to 0. Okay, so मु तुमको लास्ट स्लाइड रे बुझेई देली जे केमितिका डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी आमे कंडक्टर सेमीकंडक्टर इन्सुलेटर विषय पढ़िले। तेणु मुझे गोटे पिला को पचारि से मूर्ख पिलाटा को पचारि सी मते कहबो सर कंडक्टर होची सबुठ यूजफुल निश्चित, किंतु मोटे कथा कहि रखुची इलेक्ट्रोनिक्स रे जेतिकी भी मटेरियल्स यूज हेची सबुडा को बिलोंगिंग्स टू द सेमीकंडक्टर। बुझी पालन नाही तुम जहां भी देखुचो एवरीथिंग इज द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री। तो काहे की व्हाई वी शुड थिंक अबाउट द सेमीकंडक्टर ना बहुत भल से तुमको बुझेबी भल से सुनो ना देखो तुम माने कोउ जिनसटा को बेसी यूज करिवो जोटा तुम पाखरे बहुत परिमाण अछि ना जोटा तुम पाखरे कम अछि। ऑब्वियसली तुम पाखरे जोटा अधिक परिमाण अछि तुम ताकू यूज करिवो। तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर रो अवेलेबिलिटी कंडक्टर रो अवेलेबिलिटी अपेक्षा बहुत 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 अधिक। कंडक्टर रो अमाउंट बहुत कम एज कंपेयर टू द कंडक्टर सेमीकंडक्टर बहुत अधिक परिमाण ले अछि। तेणु मु तुमको कहि दउची केमिति कहीं तुम कंफ्यूज हो केमिति कहि दउ देखो ना साधारणतः हम इंडिया रे जो सेमीकंडक्टर हम यूज करूछु
सबु सेमीकंडक्टर प्राय बा सबु सेमीकंडक्टर मटेरियल्स प्राय सिलिकॉन तैयारी तेणु सिलिकॉन को आम इजिली पाई परिबा केमिति ना बाली पत्थर एउडारे 95% मोर देन 95% ऑफ सिलिकॉन अछि बा सेटा ता भितरे सिलिकॉन डाइऑक्साइड बा सिलिका थाए आ सिलिका रो हम कोन पाई थाउ सिलिकॉन पाई थाउ जदि हम सिलिका को मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस रे हीटेड करिवा इट विल बी ए सिलिकॉन तो तुम जानलो बाली पत्थर मध्य अछि कोन अछि सिलिकॉन अछि तो सेकेंड कथा होची एटा हम आग्रो वेस्ट रु आमे 95% प्योर सिलिकॉन हम पाई परिबा मु निजे एटा को मो रिसर्च पेपर रे मु निजे एटा को बाहर करची मु कोकोनट सेल बा कोकोनट कोर बा नोडिया कता नोडिया खोलपारु 95% प्योर सिलिकॉन मु पाई सरची बुझी पालन नाही तो माने मते तळे कॉलेज को आसी मते पचार की जानि परियो सर केमती पाइले मु तुमको मध्य प्रोसेसिंग टा बतै दी परिबी आउरी मोर जने सांग कलिग्स मध्य सीए मध्य माने कासाभा बा माटी आळु चुपारु मध्य प्योर से 99% प्योर सिलिकॉन बाहर करची बुझी पालन नाही तो सिलिकॉन एवेलेबिलिटी टा बहुत अधिक बा एटा पृथ्वी पृष्ठ रे प्रचुर परिमाण रे अछि सेहित पई ताको बेसी यूज करा जाउची तो सेकेंड कथा होची एटा गला फास्ट कथा सेकेंड कथा होची जे कंडक्टर भितरे जो करंट फ्लो हबो ताकू आमे कंट्रोल करिवा बहुत कष्ट तेनु कंडक्टर रे जेहेतु रेजिस्टेंस टोटल नाही बहुत नाही बोली कोइ न हबनी बहुत लेस अछि तो सेहित पई आमे से केस रो करंट को कंट्रोल करिया टी कष्ट किंतु सेमीकंडक्टर रे किछि आमे रेजिस्टेंस पाउचे तेनु सेठी कोन होछु ना कंट्रोलिंग आमे करि पारुचे तो फास्ट कथा थिला आर एवेलेबिलिटी बहुत अधिका थिला एबे आमे जानले जे आ भितरे थिबा करंट को बा करंट फ्लो को आमे कंट्रोल करि परिबा जोटा कि कंडक्टर पक्षरे टिके इम्पॉसिबल बुझी पालो नाही आउ आर रिलायबिलिटी मध्ये बहुत अधिका बा इट इज वेरी इजी टू यूज आको हम इजीली यूज करि परिया इजीली पाई परिबा प्लस इजीली आ भितरे करंट फ्लो को हमें कंट्रोल करि परिबा तो सेहिथि पई हमें सेमीकंडक्टर को ही कंसीडर करूचे कंडक्टर और इन्सुलेटर अपेक्षा सेमीकंडक्टर होची बेसी यूजफुल समस्त प्राय बुझी परथिबो तो नेक्स्ट को आसो तो बर्तमान हम पढ़िबा उटे नुआ जिंस जोटा कि हमको कहिबा बेंड थ्योरी बा बेंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इन्सुलेटर एठी हम पढ़िबा बुझी पालन नाही तो देखो प्रथमे लिखा है एनर्जी बेंड बा द कलेक्शन ऑफ द क्लोजली शेप्ड एनर्जी लेवल इज नोन एज एनर्जी बेंड तो एनर्जी लेवल को किछि नहीं की कोन है क्रिएट होता है ना एनर्जी बेंड क्रिएट होता है बुझी पालन नाही ता माने एठी एठी देखो ए एनिमेशन को लक्ष्य करो एठी ऑर्बिट गुडी को सर्कुलर फॉर्म रे अछंती ताकू जदि हम सीधा 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 ड्रॉ करिवा तन सेटा कोन हबो ना सेउडा को एनर्जी लेवल ले क्रिएट हेबे आ से जो क्लोजली शेप्ड एनर्जी लेवल होची कोन ना एनर्जी बेंड बुझी पालो ना बुझी पालोनी तो देखो एटी एनिमेशन लक्ष्य करो एटी बुलुची मझिरे रहिची न्यूक्लियस लास्ट सेलटा लास्ट सेलटा लेखा जाउची कोन ना इट इज ए वैलेंस सेल बा लास्ट सेल बा आउटर मोस्ट सेल कोन कहा जाय वैलेंस सेल बोली कहा जाय तेणु जो इलेक्ट्रॉन माने एठी रिवॉल्व होउछन ता कोन कहा जिवो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोली कहा जिवो बा सेटा को कोन कहा जिवो वैलेंस बैंड बोली मध्य कहि परिबा हम ताको बुझी पालो ना बुझी पालोनी तो एटा होची कोन ना वैलेंस बैंड तेणु सेई रको एटा कोन कहा गला इट इज द लोअर बैंड बिलोंगिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन तापर देखो कंडक्शन बैंड तो कंडक्शन बैंड होची कोन now the band which is belonging to the free electrons or those electrons which are taking parts in the flow of current so look at this animation look at my laser pointers एठी गोटे bottle type रो अछि
जोटी कौन होची ना देखो आस्ते 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 एटा देखिवो स्टार्ट हुएटा एटा देखो ही ऊपर को उठुची एमतिका बुझी पालो ना ऊपर को उठला फळे इलेक्ट्रॉन माने कोन करचंती ऊपर को जंप करचंती ता माने एठी थिबा इलेक्ट्रॉन माने कोन करचंती एनर्जी को गेन करूचंती से माने कंडक्शन माने जतरे डेई पडुचंती सेतबेले तन कोन कहा जाउची फ्री इलेक्ट्रॉन बोली कहा जाउची तेणु आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉन थाए सेमानु कोन कहा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोली कहा जाए और द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बिलोंगिंग्स टू द वैलेंस बैंड इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो माने कि ही फ्री हेई पारिबे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने ही फ्री हेई पारिबे काइना से माने आउटर मोस्ट सेल रहउचंती तांकू बाहर करिबा होची बहुत इजी आ कंडक्शन बैंड होची कोन ना जोटी फ्री इलेक्ट्रॉन रहउचंती तेणु मु तुमको आगुरु कहि सारछि मध्य जे गुटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेतेबेले एनर्जी को गेन करिवो सेतेबेले से कोन करिवो ना सेतेबेले से जाई कि कंडक्शन बैंड को जीवो बा सेतेबेले से फ्री हबो आ सेही फ्री इलेक्ट्रॉन माने करंट फ्लो रे पार्टिसिपेट करूचंती तांकर काइनेटिक एनर्जी होची पॉजिटिव बुझी पालो नाही तेणु एई एनिमेशन तुमको मु देखौची जे इलेक्ट्रॉन माने कोन करचंती एनर्जी गेन करचंती तापरे जंप करचंती ऊपर को देखो इलेक्ट्रॉन माने जंप करियले बुझी पालो नाही सिमिलरली एटा होचु न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन माने सर्कुलर पाथ रे बुलुचंती लास्ट सेल टा होची कोन ओडे वैलेंस सेल बुझी पालो ना बुझी पालो नाही आउ तमरो होची क्लोजली शेप्ड एनर्जी बैंड closely shaped energy band are known as energy band okay so students look at here I'm drawing some energy levels here so the orbits is now some like line structures is known as energy bands so these are the energy band which I am draw these are the energy bands okay so तुम माने जान लो the closely shaped energy level is known as energy band तो लास्ट रे जो सेल टी रहुची बा जो ऑर्बिट रहुची ता कोन कहा जाउची ता कहा जाउची वैलेंस सेल बोली कहा जाउची आउ ता पाखरे जो इलेक्ट्रॉन माने रहउचंती तांको कोन कहा जाउची तांको कहा जाउची वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोली कहा जाउची प्राय सब बुझी परतियो तो लेट्स कम टू द next slide so here in this slide we are going to describe the formation of energy bands in solids तो एक्चुअली एनर्जी बैंड्स बस ये जो क्लोजली स्लैप्ड एनर्जी लेवल केमितिका क्रिएट होची बुझी पालन नहीं so look at here so this is the interatomic spacing and energy a graph we are going to draw so these are the orbitals as you know that SPDF are orbitals are here so you know that the first orbital is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 like this so this atom which are described in the graph is a silicon atom because here the number of electrons is 14 so here look at here the first cell the first orbital is containing 2 electrons as it is 1s2 2s2 is containing 2 electrons as it is 2s2 and the third is 2p6 that is why it is containing 6 electrons like this the 3s2 is supposed to be contain 2 electrons and 2 electrons are also here but the p orbital must be contain look at here the 6 electron but here only 2 electrons are here
एटी 6टा रहिया कथा किंतु मात्र केतरा अछि 2टा अछि ता माने एई माने ही फ्री बा एमानकू आमे इजीली बाहर करि परिबा एमान बुझि पर एमानकू आमे इजीली बाहर करि परिबे एई माने ही फ्री ही पारिबे साधारणतः एटा को फिजिक्स रे कुहा जायनी तथापि तुम भल अंडरस्टैंडिंग पई एठी मु तुमको किछि बुझेछि बुझि पालन नाही so look at here how the valence band and conduction bands are formed. So this band, look at the laser pointer. This band is known as valence band. This band is known as conduction band, and this gap is known as this is the gap between the valence band and the conduction band. So this band is known as forbidden energy gap. So look at here. The valence band is formed. Already I told you this is the valence band. Again, this is the conduction band. Again, this is the forbidden energy gap. Everything is described here. How the valence band is coming, how the conduction band is coming, and how the forbidden energy gap is coming. So this is the forbidden energy gap. ତେଣୁ ତମମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଭେଲେନ୍ସ ସେଲଟା ହଉଛି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ ଆଉ ସେ ଭେଲେନ୍ସ ସେଲରେ ହିଁ କଣ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଭେଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟାକ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡିକ ବା ଯୋଉ ଅର୍ବିଟାଲଟା ଫୁଲଫିଲ ହଉନି ସେଇ ଅର୍ବିଟାଲରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ହିଁ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବେ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ତା ତଳେ ଯୋଉ ଅର୍ବିଟାଲ ରହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଭେଲେନ୍ସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି कंडक्शन बैंड बुझिपाल ना एटा हूँ कौन भैलेंस बैंड बा भैलेंस इलेक्ट्रॉन मान को जी रखुची सी हूँ कौन भैलेंस बैंड आ एटी भैलेंस इलेक्ट्रॉन सहित सामान किंतु एम होती पेयर नहांती ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मान कौन हो पारे फ्री ही पारे प्राय समस्त एटा को बुझी पार्थ भल से डेस्क्राइब कली तुम प्राय तो बुझी पार्थ तेना भैलेंस बैंड रे कौन रोचंती जो इलेक्ट्रॉन मान रहंती से मान को भैलेंस इलेक्ट्रॉन आउ सेगुडा कौन हो पारे ना से माने फ्री इलेक्ट्रॉन हो पारे किंतु एई इलेक्ट्रॉन माने देखो ए दुईटा इलेक्ट्रॉन जो 3s2 रे अछंती जदी एई अमाउंट रो एनर्जी तीर चिन्ह को लक्ष्य करो लेजर पॉइंट लक्ष्य करो एई अमाउंट रो एनर्जी जदी आमे एमान को प्रोवाइड करिवा काहा को 3s2 रे थिबा इलेक्ट्रॉन मान को से माने कौन हो पारे ना एटी की जंप करिवे 3p2 को जंप करिवे किंतु आमे तांको केते दवा दरकार फॉरबिडन एनर्जी फॉरबिडन गैप अमाउंट रो एनर्जी तांको दवा दरकार फॉरबिडन गैप अमाउंट एनर्जी देले से माने कोन करिवे ए कंडक्शन बैंड को से माने जंप करि जिवे तेनु वैलेंस बैंड रे जो इलेक्ट्रॉन गुडी को अछंती से माने कोन कर परिवे कंडक्शन बैंड को जाई परिवे किंतु से मान को कोन करिया दरकार यथेष्ट अमाउंट रो इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी दवा दरकार एनर्जी देले से माने कोन करिवे कंडक्शन बैंड को जिवे आउ कंडक्शन बैंड रे कोन करिवे से माने फ्री इलेक्ट्रॉन आकार एक्ट करके करंट फ्लो रे पार्टिसिपेट करि परिवे तो सेटा मु टिके छ तुम कहि रखछु मु एनर्जी सेतुन होछि से एनर्जीटा तुम चारिटा फॉर्म रे हम इलेक्ट्रॉन को देई परिबा एटा तुम पढिया मते डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ले वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जोटा कि आइंस्टाइन डेमोन्स्ट्रेट करथिले but the energy in the form of light we are going to given to the electrons सेटा कोन कहती फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बा लाइट फॉर्म रे आलोक फॉर्म रे एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया कोन कहती फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोली कहती थर्मोआयनिक इमिशन को कोन कहती ना सेठी हीट देके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया कोन कहती थर्मोआयनिक इमिशन बोली कहती तापरे थर्ड रे होची कोन इलेक्ट्रॉनिक इमिशन बा करंट देकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करिकी आमे कोन करिया सेठी आमे वैलेंस बैंड रे थिबा इलेक्ट्रॉन को फ्री करि परिया बा सेठी आमे गोटे जे कोनसी उपाय रे फॉरबिडन अमाउंट रो फॉरबिडन एनर्जी गैप अमाउंट रो आमे एनर्जी दबार अछि काहाकू ना एई वैलेंस बैंड रे थिबा इलेक्ट्रॉन को दबार अछि बुझि पालन नाही तेनु सब बळे आमे एई जो 3s2 एठी हला 3s2 अलगा एटम क्षेत्र अलगा हबो कि 3s2 थिबा इलेक्ट्रॉन मान को जेतळे आमे एई फॉरबिडन अमाउंट रो जते आमे एनर्जी दबा जेतळे सान कोन करिवे एटी की जंप करिवे 3p2 को जंप करिवे बा कंडक्शन बैंड को जंप करिवे सेही मान ही करंट फ्लो रे पार्टिसिपेट करिवे सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड
So this is a long question, very important long question. Energy band theory of conductor. ତେଣୁ conductor ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ free electron ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେଠି କୋଉ band ର ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେଟା ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କହିପାରିବ ଯେ ସାର୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାନେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡର, ତେଣୁ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଓରି କହୁଛି ଯେ ଏଠି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଇଜିଲି ଫ୍ଲୋ ହେଇପାରୁଛି, ତା ମାନେ ଏଠି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତେଣୁ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହୁଛନ୍ତି। বা ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଟା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। एक्चुअली एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर होची कोन ना एई केस रो कंडक्शन बैंड आउ वैलेंस बैंड ओवरलैप हेबे बा एठी टोटली कोन रहिबो फॉरबिडन एनर्जी गैप रहिबो नाही। जो से माने परस्पर ऊपर चढ़ी जिवे ना सेठी फॉरबिडन एनर्जी गैप रहिबो कि रहिबो नाही, बा एटा सिंगल बैंड बोली हमें धरिबा, बा एठी हमें कहि परिबा वैलेंस बैंड जाई कंडक्शन बैंड सहित मिसी जाईची, जहा फल कि वैलेंस बैंड थिबा इलेक्ट्रॉन गुड़िको बर्तमान समस्ते फ्री हो जाइछन्ति। सेहिते पई कंडक्टर रो कंडक्टिविटी यथेष्ट अधिक, तार फ्री इलेक्ट्रॉन होची बहुत अधिक, आ फॉरबिडन एनर्जी गैप नाही। इट्स फॉरबिडन एनर्जी गैप इज जीरो। आउ थरे कहि रखुची आमे वैलेंस बैंड रु इलेक्ट्रॉन गुड़िको कंडक्शन बैंड को नहीं परिबा केतेबेले ना वैलेंस बैंड रो थिबा इलेक्ट्रॉन गुड़िको आमे एनर्जी मोस्ट भी दवा दरकार। Look at this picture. Here only one single band or no band gap or no forbidden energy gap. So in this type of substance through which electric current can pass easily, the conductor देखी easily कौन ही परिवो करंट पास ही परिवो, कारण एठी फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक। सेकंड कथा सेटा लिखा है नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, एठी एनर्जी गैप नाही, बा एठी वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग जे जणे जनक ऊपर एठी चढ़ीची, बा एठी कंडक्शन बैंड ऊपर वैलेंस बैंड अछि, बा एटा गोटे सिंगल बॉन्ड नो वैलेंस बॉन्ड बोली हम कहि परिबा। तो हियर कंडक्शन बैंड होची कंप्लीटली फिल्ड, काहे कहूचे ना एठी पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन माने अछंती, बा वैलेंस बैंड रो थिबा इलेक्ट्रॉन माने सब कंडक्शन बैंड को पळै जंदी, वैलेंस बैंड टा कंडक्शन बैंड को पळै जो वैलेंस बैंड नाही कहले चले, बुझी पालन नाही। तापरे व्हेन दैट लास्ट पॉइंट लिखते पड़े, तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जेतोळे एठी हम टेम्परेचर को राइज करिवा, एठी बापा कोन हबो रे ना एठी द कंडक्टिविटी टा कमी जिवो, काहे कि ना एठी ऑलरेडी बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन अछंती, तो एमान को जेतोळे हम एनर्जी देबा आंको भितरे परस्पर भितरे कोलिजन बढ़िबो, कोलिजन बढ़िले हीट एनर्जी फॉर्मेशन हो, ता माने एठी कोन हेची ना रेजिस्टेंस बढ़िची कंडक्टेंस कमीची। तेनु कंडक्टर रे जेतोळे हम टेम्परेचर को बढ़ौचे बा हीट एनर्जी सप्लाई करूचे, सेतोळे कोन होची ना तार कंडक्टिविटी टा कमुची, रेजिस्टिविटी टा बढ़ुची। एटा मने रखियो सब, किंतु अन्य दुईटा सेमीकंडक्टर इन्सुलेटर केस रे एटा अलगा। तो सेकेंड कथा को छुआ आस, बर्तमान होची सेमीकंडक्टर। तो एटी फिगर को देखो, एटी कोन हेची ना कंडक्शन बैंड ऊपरे रहिची, तळे रहिची कोन वैलेंस बैंड रहिची, तो एटी कोन रहउची फॉरबिडन एनर्जी गैप रहउची, और सम लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बा एनर्जी गैप बोली कहि परिया, बा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर देन 3 अमाउंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी देले सब इलेक्ट्रॉन को एठी की जाई परिबे। हम एटा मु तो बुझे दउस बोल से। तो एटी फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लाइक लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बा एठी जेतला हम मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट रो एनर्जी देबा, सेठी कोन हबो से माने कंडक्शन बैंड को पळेइबे, एटी किछि एनर्जी गैप रहुची इन द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेहित पई आर फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या टिके कम बा बहुत कम। एटी देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी मोर and here is lesser amount of free electrons are present because this is the conduction band. I think all of you understand. So it is the types of substance through which the current will be pass partially बा अधा दिवा बरे पास करिवे एठी। फॉरबिडन एनर्जी गैप आर प्रेजेंस मु तुमको देखै सालेनी, और सेटा को एटी जर्मानियम पई 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, सेटा को सिलिकॉन पई सो 1 पॉइंट समथिंग, माने जर्मानियम एटी जर्मानियम मटेरियल्स जदि हम 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट रे एनर्जी प्रोवाइड करिवा, तार इलेक्ट्रॉन एटम मान जदि सेति की एनर्जी को एब्जॉर्ब करले, तार सेटी कोन हबो तार फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक हबो। तो एठी कोन हला वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, वैलेंस बैंड रु जेहेतु किछि इलेक्ट्रॉन एठी की जंप करिसंती, एठी की पळे आछंती, एठी कोन हिची ना एठी किछि एठी पार्शियली एम्प्टी अछि, बा किछि इलेक्ट्रॉन एठी नाहंती।
अब एठी कोन होइछि ना पार्शियल फील्ड हो किछि इलेक्ट्रॉन जेतु अछंती पार्शियल फील्ड हो तार एठी कहि पारे कोन वैलेंस बैंड इज partially empty and the conduction band is partially filled जेहेतु किछि इलेक्ट्रॉन ऊपर को जंप करछंती तो लास्ट कथा होछि when the temperature increases मु तुम ऑलरेडी कहि सारछि जेतले एठी टेम्परेचर टा इंक्रीज करियो तार इलेक्ट्रॉन माने कोन करिए एनर्जी गेन करिए इन द फॉर्म ऑफ हीट दे माने एनर्जी गेन करिवे तेणु थोड़ा जो जर्मानियम तार 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट एनर्जी दरकार तेणु से हीट रो से एनर्जी को गेन करी कोन करियो वर्तमान ऊपर सेल को पळेबो बा से मान वर्तमान कंडक्शन बैंड को पळेबे जहा फल कि आर कंडक्टिविटी टा बढ़िबो तेणु जेतेबेले टेम्परेचर राइज होबो इन द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस बुझी पालन तो द लास्ट वन इज इंसुलेटर the insulator look at here the large forbidden energy gap is present here so all the electrons are present in the valence band no electrons are present in the conduction band ता माने एठी गोटे की फ्री इलेक्ट्रॉन नाही तेनो एई केस रा हमें करंट फ्लो करिवा होची इम्पॉसिबल the energy gap is too large or the all of the electrons are in valence band तेणु एठी जेहेतु फॉरबिडन एनर्जी के बहुत अधिक अछि एठी समस्त इलेक्ट्रॉन माने कोठी अछंती वैलेंस बैंड रे अछंती बा एठी वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड आउ एठी कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी that is due to the large forbidden energy gap तेणु insulator is the types of substance through which the current cannot be flow that is due to the absence of the free electrons or due to the large forbidden energy gap okay तेणु आमे कहि परिबा जेतेबेले आमे एठी थर्मल एनर्जी सप्लाई करिवा or when the temperature increases some of the electrons present in the valence band or the valence electrons will be absorb some energy then it will be able to jump to the conduction band but in this case it is quite impossible that is we have to given a large amount of energy बा एठी हमको बहुत हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कले एठी पॉसिबिलिटी रहिबो किछि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड रु कंडक्शन बैंड को जंप करिवे कारण एठी फॉरबिडन एनर्जी गैप होची बहुत लार्ज बुझी पाला ना बुझी पालनी तेणु एठी हीट देले तार कंडक्टिविटी बढ़िबो आउ तार रेजिस्टिविटी टा कमिबो तेणु आउ थरे मु तुम समराइज करूची मटेरियल सॉल्यूशन थ्री टाइप कंडक्शन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर in the case of the conductor the free electrons numbers are very more that is no forbidden energy gap because in this case the conduction band and valence bands are overlapping each other eta ote बहुत important point second point होची the conduction band और valence band हम जदि कहि परिबा एटा गुटे बैंड बुली किछि भी भूल हो नाही काहे कि ना एठी सेमान दुई जण परस्पर ऊपर चढ़ी चंती बा एठी फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक सेहित पई यार कंडक्टिविटी अधिक किंतु यदि हम हीट दबा त एठी कोन होबो तार कंडक्टिविटी टा कमी जीवो त रेजिस्टिविटी टा बढ़ी जीवो बुझी पालन तो इन द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर एठी कोन होची ना फॉरबिडन एनर्जी गैप टा टिके कोन होची टिके कम रहउची बा एठी तुम देखो एठी केते रहउची ना सब तुम कहिसिली सब लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तेणु जदि आमे 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट अमाउंट रो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट रो एनर्जी को प्रोवाइड करिवा इलेक्ट्रॉन में भी किछि जंप करी कोठी की जिवे कंडक्शन बैंड को जिवे बा से माने करंट फ्लो करिया पई एलिजिबल हेबे but in the case of insulator is something different here the band gap is too high so no electron will be moved from the valence band to the conduction band so next class we will discuss many more things in electronics okay thank you